Welcome to the 13th video on As You Like It by William Shakespeare. In this video, we shall see Act 2, Scene 4, Part A. नाटक As You Like It, जिसके रचयिता विलियम शेक्सपियर हैं, के इस 13वें वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्ट 2 सीन 4 का पार्ट ए देखेंगे। In the earlier scene, we had seen Adam making all possible efforts to protect his little master Orlando from the impending danger from his elder brother Oliver. अभी हमने पिछला सीन देखा था। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस देखे हैं उनमें हम कहानी को बढ़ते हुए देख रहे हैं, और इससे पहले वाले सीन में हमने देखा था कि एडम भरसक प्रयास कर रहा है अपने छोटे मालिक ऑरलैंडो को ओलिवर से होने वाले खतरे से बचाने के लिए। As per Adam's information, we have seen that Oliver has plans to burn down Orlando's quarters that very night. Now, the information that Adam shares with Orlando is that he is aware of the plans that Oliver is making to harm Orlando. And according to those plans, Oliver has decided to burn down Orlando's quarters that very night. अभी हमने एडम द्वारा दी गई सूचना से ये पता किया है कि ओलिवर ने अपने छोटे भाई ऑरलैंडो को क्षति पहुंचाने के लिए उसी रात उसके निवास स्थान को जलाने की योजना बनाई है। In case he fails to murder Orlando in this manner, he will try some other methods of getting rid of Orlando. Now, Oliver's desperate attempt to put an end to Orlando's life is very clearly seen in the plan that he makes. He has thought of plan A, plan B, plan C. In case plan A fails, then he'll move on to plan B. And if that fails, he'll move on to plan C. So this is how the enmity or the revengefulness on the part of Oliver has been highlighted. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ओलिवर ने अपने भाई ऑरलैंडो को किसी भी तरह से मृत्यु देने की कोशिश, इस तरह से योजना बनाई है कि अगर एक योजना विफल हो जाए तो वो दूसरा प्रयास करेगा, अगर दूसरी योजना विफल हो जाए तो वो तीसरी तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये जो वैमनस्य है, इसको बहुत अच्छे तरीके से शेक्सपियर ने अपने पात्रों की इस दुश्मनी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से इसका विवरण हमें दिया है। एडम एडवाइजेस ऑरलैंडो टू लीव ओलिवर्स हाउस. He gives him his life savings to sustain himself and begs to accompany him. Also, we have seen that Adam advises Orlando to leave Oliver's house. Not only this, he has supported Orlando by giving him all the savings that he had accumulated for his old age. So this is his loyalty towards his master, that he has given his life's savings to him. And things don't end here. His loyalty, affection, and faithfulness for his little master Orlando is so great that he begs to accompany him so that he can
protect him, guide him and take care of him. एडम के पात्र को हमने यहाँ पर ऑरलैंडो के प्रति समर्पित देखा है और उसका समर्पण इतना अधिक है कि अपने जीवन के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए जितनी भी उसने बचत की थी वो पूरी बचत पूंजी वो ऑरलैंडो को दे देता है। इतना ही नहीं, वो ऑरलैंडो से ये प्रार्थना भी करता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है ताकि वो उसकी रक्षा करे, उसकी देखभाल करे और जहां उसको आवश्यकता हो वहां वो उसको गाइड भी कर सके। दिस सीन इज एक्शन पैक्ड। बोथ ऑरलैंडो एंड एडम पैक अप देयर बिलोंगिंग्स and hurry towards the forest of Arden to escape danger. And here we see that the scene is action packed because there is a lot of activity, there is a lot of motion, and the characters on the stage, they look like they are doing something. यहाँ पर इस दृश्य में इतना एक्शन, इतनी क्रियाशीलता दिखाई गई है, पात्रों की क्रिया दिखाई गई है कि वो मूव कर रहे हैं, पूरे स्टेज को यूज कर रहे हैं और दर्शकों के लिए इस तरह के एक्शन वाली स्थितियां बहुत आकर्षक होती हैं। इन द नेक्स्ट सीन we reach on way to the forest of Arden. Here we meet a trio of weary travelers. Now, when Adam and Orlando leave Oliver's house, then the scene changes. And the next scene is set on way to the forest of Arden. अब जब ऑरलैंडो और एडम ओलिवर का निवास स्थान छोड़ करके चलने लगते हैं, उसके बाद सीन चेंज होता है, दृश्य बदलता है और अगले दृश्य में हम फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के रास्ते में पहुंच जाते हैं। Here we meet a trio of weary travelers. These three travelers have traveled a long distance and are now dead tired and fatigued. Now here, on way to the forest of Arden, we meet a trio of weary travelers. We find that there are three travelers who are very tired, dead tired, and they are tired because they have traveled a long distance and now their body has absolutely given up. So this is the condition of the three travelers. इसके बाद जब दृश्य परिवर्तित होता है तो हमें आगे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के रास्ते में 3 यात्री मिलते हैं। ये 3 यात्री बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं और अभी थकान से चूर चूर हो रहे हैं। दे आर यंग शेफर्ड बॉय, अ यंग गर्ल एंड देयर ओल्ड सर्वेंट। नाउ हाउ द 3 कैरेक्टर्स that come before us are a young shepherd boy, a young girl and their old servant. यहाँ पर हमें 3 पात्र देखने को मिलते हैं और ये 3 पात्र हैं। एक ग्वाला है जो कि काफी कम उम्र का है, उसके साथ एक लड़की है और उन दोनों के साथ उनका नौकर है, सेवक है। In fact, they are Rosalind dressed as a young shepherd, Celia dressed as a shepherd maid, and Touchstone as their guardian and caretaker. Now we find that these 3 travelers are none other than Rosalind, who has dressed herself as a young shepherd boy. It was pre-decided. When the 2 sisters had decided to leave the palace of Duke Frederick, at that time they had decided that they will dress up in this manner. So Rosalind, because she is tall and hefty and her body is quite well built, so she says that I will dress up as a shepherd boy. And Celia, she dresses as a shepherd maid because she is comparatively lean and thin. And then the 3rd character, Touchstone, he dresses up as a servant or caretaker.
यहाँ ये जो 3 पात्र हमें देखने को मिलते हैं, जो एक ग्वाला है, एक ग्वालन है और एक उनका नौकर है, ये 3 पात्र वास्तव में रोजालिंड हैं। जब ड्यूक फ्रेडरिक का महल छोड़ रहे थे तब इन्होंने आपस में ये तय किया था कि हम रास्ते में अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह से एक यूनिट बनाएंगे जिसमें कि हम तीनों ऐसा लगे जैसे कि सपोर्टिंग कंडीशन में दिखाई दें लोगों को। तो यहाँ पर रोजालिंड क्योंकि उसका वो शरीर से थोड़ी सी हृष्ट पुष्ट है, तो अच्छा वेल बिल्ट शरीर है उसका, तो वो कहती है कि मैं ग्वाले की तरह मेल की तरह, पुरुष की तरह, लड़के की तरह कपड़े पहन लूंगी। और सीलिया कंपैरेटिवली थोड़ी सी पतली दुबली छरहरे बदन की है, तो सीलिया कहती है कि मैं शेफर्ड मेड की तरह, ग्वालन की तरह कपड़े पहन लूंगी। और तीसरा टचस्टोन है जो उनका सेवक है, नौकर है, परिचारक है, वो अपने नौकर वाले रोल में उसी हिसाब से कपड़े पहन लेता है। तो यहाँ पर जो 3 ट्रैवलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक ग्वाला है, एक ग्वालन है और एक नौकर है। वास्तव में ये रोजालिंड, सीलिया और टचस्टोन है। After leaving the palace of Frederick, they have finally reached the outskirts of the forest of Arden. Now, the scene moves to the outskirts of the forest of Arden. After leaving Duke Frederick's palace, these people have reached the forest of Arden, the outskirts, the periphery of the forest of Arden. यहाँ पर दृश्य आगे बढ़ता है और ड्यूक फ्रेडरिक का महल छोड़ने के बाद ये तीनों लोग, रोजालिंड, सीलिया और टचस्टोन, ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के बाहर वाले हिस्से तक पहुंच जाते हैं, किनारे तक पहुंच जाते हैं। दे आर एग्जॉस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग, so are desperately in need of some rest. We also see that they are exhausted of traveling because they are not used to moving long distance on foot. So because they have been royal people and they stay very well protected, well cared for, but now since they are in a state of banishment, so they have to travel on foot, and that is the reason why they are exhausted and tired. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रोजालिंड, सीलिया, ये क्योंकि महलों में रहने वाली युवतियां हैं और इन्होंने बहुत अच्छे रख रखाव में, बहुत अच्छी देखभाल के तहत इनका जीवन बीता है, तो इन्होंने कभी पैदल चलने का इतना अनुभव भी नहीं लिया है। अभी इनको बैनिशमेंट के कारण, देश निकाला होने के कारण पैदल चल के आना पड़ा है, तो इस कारण से ये बहुत बुरी तरह से थकी हुई हैं। So are desperately in need of some rest. यही रीजन है कि इनको इस समय आराम की बहुत सख्त आवश्यकता है। Shakespeare has dramatized this scene using a lot of imaginative skill. The appearance and varied dresses of the characters add charm for the readers as well as audience. Here we see Shakespeare's skill as a dramatist. He has dramatized the scene using a lot of imagination, because how to make the scene interesting for the audience. The audience always loves change. The audience loves something going in a different direction that makes it interesting. So this is how Shakespeare has added interest by dressing up his characters differently. यहाँ पर हम देखते हैं शेक्सपियर ने एक नाटककार के रूप में अपनी कल्पना शक्ति का बहुत अच्छा उपयोग किया है और उसने ऑडियंस के लिए, दर्शकों के लिए, नाटक को रुचिकर बनाने के लिए अपने पात्रों का रूप इस तरह से गढ़ा है कि वो अपने नए रूप में, अपने बदले हुए भेष में बहुत आकर्षक लगे और ऑडियंस को, दर्शकों को वो प्ले में इंटरेस्ट, नाटक में इंटरेस्ट मेंटेन करने में मददगार होते हैं। The appearance and varied dresses of the characters add charm for the readers as well as the audience. यहाँ पर जो appearance है और इनकी तरह तरह की वेशभूषा है, ये देखने वालों के लिए बहुत ही रोचक होते हैं और इसके कारण नाटक की
जो आकर्षक स्थिति बनती है, लोग देखते हैं क्योंकि शेक्सपियर के जमाने में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो बहुत छोटे छोटे ये टेक्निक्स होती थी जिनसे नाटक को के अंदर रुचि पैदा की जाती थी. At the time of Shakespeare, there was no technology, there was no supporting device through which they could add interest to things. So this is how Shakespeare tries to hold the attention of his audience. After this, two new characters appear on the scene as this stage of the drama. They are Silvius and Corin. As the shepherd trio, Rosalind, Celia and Touchstone, pause to rest, another young shepherd, Silvius, enters the scene. He is emotionally disturbed. There is turbidity of thought and oration in his appearance on the stage. He vents out his emotional turmoil before his friend Corin. After this, two new characters appear on the scene. Now, already the drama is moving in a very interesting way, and along with that, we find that Shakespeare introduces two new characters. They are Silvius and Corin. And as the shepherd trio, Rosalind, Celia and Touchstone, pause to rest, another young shepherd, Silvius, enters the scene. Now, already we find that Rosalind, Celia and Touchstone, they are dressed in a different manner and they hold our attention. They hold the attention of the audience. Along with that, things become yet more interesting when one new character, Silvius, enters the scene, and he enters in an emotionally disturbed condition. यहाँ हम देखते हैं कि रोजालिंड, सीलिया और टचस्टोन अपने बदले हुए भेष में, एक ग्वाला है, एक ग्वालन है, एक उनका नौकर है। इस बदले हुए भेष में ये पहले ही बहुत रुचिकर लग रहे हैं और इसके साथ ही एक नया पात्र और यहाँ पर आ जाता है तो उससे नाटक में रुचि और अधिक बढ़ जाती है। और ये नया पात्र है सिल्वियस, जो कि भावनात्मक स्तर पे बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड है। There is turbidity of thought and oration in his appearance on the stage. And there is turbidity of thought and oration. Now this character Silvius, he is very jumbled up. He is very disturbed, emotionally disturbed and unable to make things clear. And this is the turbidity. यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वियस एक अजीब सा जम्बल्ड अप, एक अजीब सा उसके मन में एक असमंजस की स्थिति है या कुछ कहना चाह रहा है, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट है। इस तरह का पात्र उसको दिखाया गया है और उसका सोच, उसके विचार और उसके साथ ही साथ उसका जो बोलने का लहजा है, ये सारा की सारा मिलकर के स्टेज पर उसको एक पात्र के रूप में बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। He vents out his emotional turmoil before his friend Corin. And here we find that Silvius, he is talking to another new character who is Corin. And he is trying to tell about his problem to his friend Corin. यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वियस एक और पात्र है कोरिन, उसके साथ एंटर हुआ है। तो दो नए पात्र यहाँ पर सामने आए हैं और कोरिन केवल सुन रहा है और सिल्वियस उसको अपने ये जो जम्बल्ड अप थॉट्स हैं, ये जो मिश्रित भावनात्मक रूप से एक अजीब सी स्थिति है जिसको कि वो क्लियरली बता नहीं पा रहा है, उसको वो कोरिन को बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का पात्र जब स्टेज पे आता है तो वो ऑडियंस को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेट अस सी द एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ द ड्रामा। अब हम कुछ एक्सप्लेनेशंस देखते हैं जो कि नाटक के इस भाग को समझने के लिए सहायक हैं। Impending usually used about something bad that will happen soon. अशुभ घटना जो शीघ्र घटित होगी, आसन्न या सन्निकट। Plan an idea or arrangement for doing or achieving something in future. योजना, विचार, किसी काम या कुछ करने के लिए, टू डिसाइड, ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर फॉर समथिंग यू वॉन्ट टू डू इन फ्यूचर।
भविष्य के कामों के विषय में निर्णय करना, उन्हें व्यवस्थित या उनकी तैयारी करना, योजना बनाना। टू इंटेंड और एक्सपेक्ट टू डू समथिंग, कुछ करने का इरादा या उसकी आशा करना। गेट रिड ऑफ, टेक एक्शन सो एज टू बी फ्री ऑफ अ ट्रबलसम or unwanted person or thing. To do something so as to no longer have or be affected or bothered by something or someone that is unwanted. छुटकारा पाना या मुक्त हो जाना. Get rid of, here we find that Oliver, he wants to get rid of Orlando. यहाँ पर हम देखते हैं ऑरलैंडो से ओलिवर रिड होना चाहता है, गेट रिड ऑफ होना चाहता है, उससे छुटकारा पाना चाहता है, मुक्ति चाहता है। सेविंग्स, एन अमाउंट ऑफ टाइम, मनी एटसेट्रा दैट यू डू नॉट हैव टू यूज और स्पेंड, समय, धन आदि की बचत। मनी दैट यू हैव सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के लिए बचाया गया धन या बचत। सस्टेन, टू कीप somebody or something alive or healthy, किसी को जीवित या स्वस्थ बनाए रखना। To make something continue for a long period of time without becoming less, किसी स्थिति को देर तक अपने मूल रूप में बनाए रखना या कायम रखना। Accompany, to go together with somebody और समथिंग, किसी के साथ साथ जाना। यहां पर एकम्पनी हमने देखा है कि एडम ऑरलैंडो से रिक्वेस्ट करता है कि ही वांट्स टू एकम्पनी हिम। एडम ऑरलैंडो से निवेदन करता है कि वो उसके साथ साथ जाना चाहता है। एक्शन पैक्ट, फुल ऑफ एक्शन, थ्रिल एंड मूवमेंट्स, क्रियाकलाप और उत्तेजना से भरपूर। एस्केप, टू मैनेज टू गेट अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू डू नॉट वॉन्ट टू बी, टू गेट फ्री, अनचाहे स्थान से निकल भागना या निकल जाना। टू मैनेज टू अवॉइड समथिंग डेंजरस और अनप्लेजेंट, किसी संकटपूर्ण या अप्रिय स्थिति से बच निकलना। समथिंग दैट हेल्प्स यू फॉरगेट योर नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन को भुलाने में सहायक साधन, बचाव, मुक्ति या निस्तार। यहां पर एस्केप को हमने इस संदर्भ में देखा है कि एडम ऑरलैंडो को एस्केप करने की सलाह देता है। Here we find that Orlando is being suggested by Adam that he should escape this place. He should go away from this place, get free of this trouble. Trio, a group of 3 people who work together. एक साथ कार्य करने वालों की तिकड़ी। Weary, very tired, especially after you have been doing something for a long time, exhausted in strength, endurance, vigor or freshness. थका मांदा विशेषतः किसी काम को देर तक करते रहने के कारण। Fatigued, an overall feeling of tiredness or lack of energy. When you are fatigued, you have no motivation and no energy. थकान, क्लांति, थकान से उत्पन्न सुस्ती और निष्क्रियता की अवस्था। Shepherd, a person whose job is to look after sheep, a person who tends sheep. गडरिया, ग्वाला, भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति। Shepherd maid, a female
whose job is to look after sheep, a lady who tends sheep or helps a male shepherd in doing so. ग्वालन या ग्वाले की महिला सहकर्मी या सहयोगी। यहां पर शेफर्ड हमने देखा है रोजलिंड को, और शेफर्ड मेड के रूप में हमने देखा है सीलिया को। यहाँ here we see that Rosalind has dressed up as a shepherd and she's in the role, supposed role of a shepherd, and Celia is in the supposed role of the shepherd maid. Outskirts, the parts of a town or city that are furthest from the center. नगर या बस्ती का बाहरी भाग, नगर या बस्ती के केंद्र से सर्वाधिक दूर का हिस्सा, सीमांत या बाह्यांचल। Exhausted, very tired, completely or almost completely depleted of resources or contents or physical and mental energy. बहुत थका हुआ, चकनाचूर। जब शरीर की, मन की, मस्तिष्क की सबकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उस स्थिति को कहते हैं एग्जॉस्टेड। Desperately, in a way that involves despair, extreme measures or rashness. निराशाजन्य दुस्साहस के साथ अत्यधिक बेचैन। Dramatize, to make a book, an event, etc. into a play. किसी कहानी आदि को नाटक की विधा में प्रस्तुत करना। To make something seem more exciting or more important than it really is. किसी घटना को वास्तविकता से अधिक उत्तेजक या बड़ा बना देना। Imaginative, having or showing imagination. कल्पना से उत्पन्न, कल्पनाशील। Of, relating to or characterized by imagination, devoid of truth. False, given to imagining, सत्य से परे, कल्पनाओं पर आधारित। Charm, a quality that pleases and attracts people. लोगों को प्रसन्नचित्त व आकृष्ट करने वाला गुण। आकर्षण या मनोहारिता। To please and attract somebody, किसी को मोहित या आकर्षित करना। Something that you wear because you believe it will bring you good luck. इस विश्वास से कुछ धारण करना कि भविष्य में भाग्य उज्जवल होगा। मंत्र या तावीज। Character, the group of qualities that make a person, group or thing different from others. A distinguishing feature, a role player in a drama or fiction. गुणों का समूह जो आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। विशेष गुण, कहानी या नाटक या उपन्यास का पात्र। Silvius. Silvius is a young shepherd who represents the romantic lover. He is madly in love with Phoebe, a rural girl who does not return his love. Silvius एक गडरिया है जिसे फीब नाम की युवती से प्रेम हो जाता है, लेकिन वह उसके प्रेम का उचित प्रत्युत्तर नहीं देती। वह एक निराश प्रेमी की तरह पूरे नाटक में विरह वेदना से
विलाप करता रहता है। Corin is an old shepherd that, despite being in love during his youth, has outgrown his folly and attained worldly wisdom. He feels deeply for the enamored Silvius and tries to console him. एक गडरिया जिसे युवावस्था में प्रेम हो गया था, परंतु अब अपनी त्रुटि का ज्ञान और दुनियादारी की समझ आ गई है। वह दार्शनिक प्रकृति का हो गया है और सिल्वियस से सहानुभूति रखता है। वह जीवन को सरल रूप में देखता है और जटिलताओं को नकारता है, इसलिए एक सम्मानित और विवेकशील पात्र माना गया है। टर्बिड, क्लाउडी, ओपेक और थिक with suspended matter, confused or obscure in meaning or effect, गंदलाया हुआ, अस्पष्ट या मिश्रित जटिलताओं वाला। Oration, a formal speech, especially one given on a ceremonial occasion. The style or manner in which an oration is given. वक्तव्य या औपचारिक व्याख्यान। यहां पर ओरेशन का यूज किया गया है जब सिल्वियस इसका ये अपनी प्रेमिका फीब, इसको हम फीब या फोइब के नाम से इसका उच्चारण करते हैं, तो जब सिल्वियस अपनी इस प्रेमिका को याद करता है तो बहुत ही नाटकीय अंदाज में, औपचारिक तरीके से, जैसे मंच पर नाटकीयता दर्शाने के लिए वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से अपनी प्रेमिका की चर्चा करता है। इससे नाटक की रुचिकर स्थिति और बढ़ जाती है। So this is how the oration, the manner, the formal style in which this character delivers his dialogues, that makes the play yet more interesting. Turmoil, a state of great noise or confusion. शोरगुल या खलबली या अनिश्चितता की स्थिति। Turmoil has been shown where there is a lot of confusion in the mind of Silvius because he is a disappointed lover, and the same confusion is reflected through his actions. Not only this, the characters also, through their facial expressions, through their activities, they get connected to this confusion. So here, this confusion or the state of turmoil, this makes the play very attractive. यहाँ पर टर्मोइल, जिसको कि हमने शोरगुल या खलबली की स्थिति को देखा है, ये हम देखते हैं सिल्वियस के दिमाग में जो चल रहा है, उसकी भावनाओं में जो चल रहा है, अपनी प्रेमिका के प्रत्युत्तर न मिलने के कारण वहां हमें ये टर्मोइल देखने को मिलता है, और यही टर्मोइल हमें उसके वक्तव्य में या उसके डायलॉग डिलीवरी में मिलता है, और यही टर्मोइल हमें उसके एक्शन में मिलता है। और यही नहीं, जब बाकी के सारे पात्र उसको देखते हैं या उसकी बातें सुनते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, तो उस समय वो जो टर्मोइल का एक सीन क्रिएट होता है, एवरी कंफ्यूजन इन ऑन एवरी फेस, हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो ये जो कंडीशन है, ये एज अ ड्रामेटाइज्ड फॉर्म इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव। जब इसको मंच पर इसका मंचन किया जाता है, तब पात्रों का इस तरह का बिहेवियर बहुत रुचिकर लगता है। क्यों कि एक बोल रहा है लेकिन उसका बोला जाना भी समझ में नहीं आ रहा और उसको समझने की कोशिश की जा रही है। तो उस समय क्या होता है, ऑडियंस भी, पात्र के डायलॉग को देख करके दर्शक भी
उस कंफ्यूजन में किसी तरह से एक जोर उनके ऊपर पड़ता है, वो उस कंफ्यूजन के कारण अट्रैक्ट होते हैं और उस कंफ्यूजन से वो कोई ना कुछ किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और उससे उनके पात्र के लिए उनके मन में एक अजीब सी दया आती है। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और नाटक की नाटकीयता को दिखाने के लिए ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो शेक्सपियर ने यहाँ पर ये जो टेक्निक यूज की है वो बहुत अच्छी यूज की है। सो दिस इज एक्ट 2 सीन 4 पार्ट ए। आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी एक्ट 2 सीन 4 पार्ट बी। ये अभी एक्ट 2 सीन 4 का पार्ट ए था। अगली वीडियो में हम एक्ट 2 सीन 4 का पार्ट बी देखेंगे। कृपया अगली वीडियो भी देखें। काइंडली सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। धन्यवाद।